कल का क्लास का समराइज करो मैं नया। Okay, so it's about now 11:25, so I should start. So in the last class we have discussed about, we had started to discuss about the mechanism of laser. We are trying to think about the principle behind that laser technology or obtaining laser. तो इसमें हमने आइंस्टाइन का नाम लिया था ना, अबाउट आफ्टर 1923-24 आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दिया था, जनरलाइज थ्योरी था, नील्स बोर के स्टेटमेंट को उसने जनरलाइज किया फॉर द एटम्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मटेरियल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने इसमें दो प्रकार के ट्रांजिशन पर ओवरऑल डिस्कशन लगभग कर लिए थे। द फर्स्ट वाज इफ दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड वी हैव दिस इज दैट एक्साइटेड स्टेट and we have here n1 atoms are there and that one is empty, and E2 minus E1, this energy difference, this is equal to 1 photon. So when we provide 1 photon to the atoms of this, then these atoms excite up to higher energy level, और इक्वेशन हमने नाम दे दिया था A plus 1 photon, that is equal to A star. तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच रहा है, and this is because of this absorption. That's why the first type of transition is absorption transition. इसको हमने कहा था कि ये absorption transition. So in the absorption transition, so when the atoms of ground state excite up to higher energy level by absorbing photon, this is known as absorption transition. So this A plus H nu, this is equal to A star, and the total number of absorption transition AB, this is proportional to Q nu. जितना एनर्जी दिया जाता है, जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, and AB this is also proportional to delta T time up to this energy is given. जितने ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा, as well as this NAB it is proportional to delta T. यहाँ पर sorry N1, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा, और इन तीनों को हम एक साथ लिखे थे, this NAB it is proportional to Q nu delta T N1, and we have just changed this proportionality sign by using a proportionality constant, and that was B12. This is a constant जहाँ पर ये 1 2 जो सबस्क्रिप्ट है, this gives the direction of transition. तो यहाँ पर ट्रांजिशन 1 से 2 में हो रहा है, इसलिए this is B12 and this is Q nu delta T N1, where B12 this is Einstein coefficient, Einstein's coefficient, and we have also discussed about its physical significance, physical importance. हमने इसका physical importance पे भी डिस्कस किया था, which gives the total probability of absorption transition. यहाँ तक क्लियर था? इसमें कोई क्वेश्चन? No sir. Now, so here we are given a huge amount of energy, that is Q nu. यहाँ पर atoms हमारे पास higher energy level पे पहुंच गया, और यहाँ let's say we have n2 atoms at excited state at higher energy level. This time, the lifetime of the atom, this tau, it is equal to in the order of 10⁻⁸ seconds. So ये जो energy gap है उतना sufficient होता है कि higher energy level पर ये 10⁻⁸ सेकंड टाइम तक ठहर सकता है, उसकी लाइफ टाइम इतना है। यदि बाय द वे इसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किए तो ये एटम्स वापस ग्राउंड स्टेट पे आने लगता है, और जब ये एटम वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये जो फोटॉन्स ये एब्जॉर्ब करके गया हुआ है उस फोटॉन्स को ये यूज करता है, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दैट्स व्हाई द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन, दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. So this is E2.
So second is spontaneous transition. लास्ट क्लास में हमने इसको डिफाइन कर लिया था। अदिति बोलो भाई, लास्ट क्लास में क्या लिखे थे, कुछ लिखे थे क्या? जल्दी जल्दी वो माइक को ऑन रखता हूं यार जल्दी से। Anyone? Sir, after 10 to the power minus 8 second, atom of a excited state E2 comes back to ground state by emitting the absorbed photon. This is spontaneous process, so known as spontaneous transition. Yes. So after this lifetime, after 10 to the minus 8 second, the atoms of E2 state means excited state come back to ground state by emitting absorbed photon. ये जो फोटॉन से एब्जॉर्ब करके गया रहता है, इस फोटॉन को इमिट करते हुए ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है। Since this is a spontaneous process, so known as spontaneous transition. So in form of equation, what we will write? This is A star. जो atoms है, इस atoms को हम A star से denote करेंगे. And now this converts into A plus emitting this photon. एक फोटॉन को एमिट करते हुए ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है। अब यहाँ पर फिर से हम वही सारा ये करेंगे कि नंबर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है वो किस बात पे निर्भर करता है, क्योंकि पहले हमने एब्सॉर्प्शन के लिए देखा था। ऐसे ही लेट NSP, SP stands for spontaneous. SP is the total number of spontaneous transition. So this is total number of spontaneous transition. Then this NSP, it is proportional to, there is no energy term. हम हायर एनर्जी लेवल पे किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, so there is no energy term. लेकिन हम यदि उसको फ्री छोड़ दें तो जितने ज्यादा टाइम तक हम अगर उसको छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। So this is proportional to delta T. So this delta T is time up to the system is left free or open, left free. जितने ज्यादा टाइम तक आपने सिस्टम को ऐसे ही इंडिपेंडेंटली फ्रीली अगर कोई आपने छोड़ दिया है, उसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया, उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखे हैं, तो वो धीरे धीरे एकदम जो हम ग्राउंड स्टेट आने लगेगा। So this NSP, this is directly proportional to delta T, and also this NSP it is proportional to N2. हाई एनर्जी लेवल पर जितने एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। So this NSP is directly proportional to total number of atoms. Total number of atoms. 8 higher energy level E2 states. तो हाई एनर्जी लेवल पर जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा, और कोई तीसरा पैरामीटर नहीं है। तो इन दोनों को हम एक साथ लिखें। So this NSP it is proportional to delta T N2, and here again we have to use another Einstein coefficient, and that Einstein coefficient is A, and the direction is from 2 to 1. So this is A to 1 delta T multiplied by N2, where A to 1 is Einstein coefficient, which gives the total probability of, ये भी क्वांटम मैकेनिकल करने का पार्ट है। सो दिस विल गिव प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली कितना क्या कैसा नहीं, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। सो दिस गिव्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। Okay, so this is the definition for of the spontaneous transition. This is just one simple chemical equation, and this NSP, the total number of spontaneous transition, this depends on 3 parameters. One is delta T, जितना ज्यादा टाइम तक आपने सिस्टम को फ्री छोड़ दिया,
सेकंड n2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द ग्राउंड स्टेट, इन दोनों के एक साथ लिख करके हम यहाँ पर एक आइंस्टाइन कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं, that is A21, which is another Einstein coefficient which gives the total probability of spontaneous transition. तो जो कोएफिशिएंट है उसे करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। जल्दी से एक बार और रिव्यू करिए और जब कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ओके डन बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तुरंत। क्या क्लियर है? सबने लिख लिया? गुड। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट ना तो? सर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? ये प्रोबेबली ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट जो है कि हालांकि इसको ऐसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कोएफिशिएंट है, ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, अलग-अलग मटेरियल के लिए अलग-अलग हो सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरिएबल नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, एक रिलेशन हम इसके बाद डिराइव करेंगे, है ना, वो बताएगा कि भाई इसकी वैल्यू किसके बात पर डिपेंड कर सकता है। सो दिस इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज अ कोएफिशिएंट। Okay, so now let's proceed. Let's proceed. So this is spontaneous process और इससे हमें बहुत अधिक मात्रा में फोटॉन्स मिलते हैं, क्योंकि N2 ऐसा दो चार एटम्स नहीं है, N2 जो है वो दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ 10⁻⁴। सो एक एटम से अगर एक फोटॉन मिल रहा है तो दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ to 10⁻⁴ फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं। बट अब इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं, क्वेश्चन ये है क्या हम फोटॉन्स जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से निकल रहा है उसको ऐसा लेजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छी खासा मात्रा में फोटॉन है। सो क्वेश्चन इज क्या हम कैन वी यूज द फोटॉन्स इमिटेड थ्रू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एज अ लेजर। तो क्या हम इस फोटॉन्स को जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से इमिट हो रहा है उसको ऐसा लेजर यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, वी कैन नॉट यूज द फोटॉन्स emitted through spontaneous process। अब हम इसको रीजन भी बताना पड़ेगा क्यों हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोटॉन्स रैंडम होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई एक्स एक्सिस में जा रहा है, कोई वाई एक्सिस में जा रहा है, कोई जेड एक्सिस में जा रहा है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए ये रैंडम फोटॉन्स है। बिकॉज these are random photons moving or emitting in random direction। ये किसी भी डायरेक्शन पे रैंडम डायरेक्शन, ये कोई स्पेसिफिक फोटॉन्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए हम इस फोटॉन्स को ऐसा लेजर यूज नहीं कर सकते। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ये हमारे कंट्रोल में है। एंड बिकॉज दिस इज अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, अनकंट्रोल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होने की वजह से ये सारे फोटॉन्स जो है वो सारे डिफरेंट डायरेक्शन पे मल्टी, जैसे फुलझड़ी में होता है, हाँ, वैसे डिफरेंट मल्टी डायरेक्शन पे ये मूव करता है, जबकि लेजर के बेस में हम क्या लेजर के बारे में हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन पे एक बीम के फॉर्म में जाना चाहिए। दैट्स व्हाई हमें जो फोटॉन्स मिलता है वो फोटॉन्स हम ऐसा लेजर यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्या, अब इसलिए क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, हमको इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमको ये जो एटम से जो कि ग्राउंड स्टेट अपनी मर्जी से आ रहा है उसको अपनी मर्जी से नहीं लाना है, बल्कि कंट्रोल प्रोसेस से लाना है। और इसके लिए क्या करते हैं, बिफोर 10⁻⁸ सेकंड, ये लाइफ टाइम से पहले हम यहां पर एक फोटॉन लेते हैं। जैसे हमने
इसको एक फोटॉन दिया, अब ये एटम्स ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, दिस एटम कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। एक फोटॉन तो ये पहले से दबा के बैठा हुआ है, एब्जॉर्ब करके दूसरा फोटॉन हमने और दिया, तो ये दो फोटॉन्स, दो पैरेलल फोटॉन्स लेके ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। हमने इसको स्टिमुलेट किया, ट्रिगर किया, मजबूर किया। दैट्स व्हाई द थर्ड टाइप ऑफ दिस ट्रांजिशन इज नोन एज stimulated. This is known as stimulated transition. So the second transition was spontaneous transition. ये खुद ब खुद हो रहा है. This is that spontaneous transition. हम spontaneous transition से कुछ photons मिल रहे हैं. This is spontaneous transition. This is spontaneous. और spontaneous transition से निकलने वाले जो photons हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये random है, uncontrolled है. इसको कंट्रोल करने के लिए हमने बिफोर ध्यान रखना है, हमें ये फोटॉन 10⁻⁸ सेकंड से पहले देना है, अदरवाइज ये एटम्स हमारे हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा और ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा। सो बिफोर 10⁻⁸ सेकंड व्हेन वी गिव दिस फोटॉन टू द एटम्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, दिस एटम कम बैक टू ग्राउंड स्टेट by giving two parallel photons. This is the stimulation process, triggering process. That's why this is known as stimulated transition. So the third type of transition is stimulated transition. This is stimulated transition. अपने सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो, मैंने क्या कहा है? Before 10⁻⁸ second, when we give one photon to the atoms of excited state, then these atoms come to ground state by emitting two parallel photons. This is a triggering process, stimulation process. That's why this is known as stimulated transition. So before 10⁻⁸ second, इसके पहले वाले में just after 10⁻⁸ second ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम यहाँ पर before 10⁻⁸ second, when we give additional photon or extra photon to the atoms of each state, that excited state, the atoms come back to ground state so when come back to ground state by emitting two parallel photons. Remember this, ये दो parallel photon एक एटम के द्वारा दिया जाएगा। दो एटम अगर कोई आ रहा होगा तो वो 4 parallel photons लेंगे। So when we give one photon to one atom, again 1-to-1 mapping, then the atoms of each state come back to ground state by emitting two parallel photons. This is a triggering process, stimulation process. So known as stimulated transition. In formal equation, this is A star, the excited atom, it absorbs one photon, then this is now normal atom plus two photons. एक पहले से ही लिया था, एक फोटॉन और मिल गया, so this is now 2 photons. चलिए यहाँ तक क्लियर हो जाए, बताना जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर पैरेलल फोटॉन्स क्या होता है? पैरेलल फोटॉन्स में जस्ट इन द सेम डायरेक्शन। These are not random photons, कोई x एक्सिस y एक्सिस में नहीं जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है ना? ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड में फिर वो रैंडम हो जाता। हम रैंडमनेस को हटाना चाहते हैं। So these are two parallel photons moving in the same direction. Okay? चलिए अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको बाउंड कर दें। Let NHT, NAD for absorption, NSP for spontaneous, NHT for stimulated is total number of
number of stimulated transition, total number of stimulated transition. Then this NST it is proportional to energy. यहाँ पर भी हम एनर्जी दे रहे हैं इसलिए एनर्जी वाला पैरामीटर इसमें आएगा. स्पॉन्टेनियस में एनर्जी हमने किसी प्रकार का नहीं दिया था, रैंडम छोड़ दिए थे. तो दिस इज एनर्जी गिवन to the atoms of T2 state. हमने हाई एनर्जी लेवल पे जो हमें ज्यादा एनर्जी दोगे ज्यादा एटम्स ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गिवन. सेकंड, आप जितना ज्यादा टाइम तक एनर्जी दोगे डेल्टा टी टाइम अप टू एनर्जी गिवन, जितना ज्यादा एनर्जी दोगे एनर्जी इज गिवन तो जितना ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा. हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे एटम्स आएंगे, आपको उतने पैरेलल फोटॉन्स मिलेंगे. एंड दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस n2. हायर एनर्जी लेवल पर n2 एटम्स हैं, ये n2 एटम्स में भी डिपेंड करेगा. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स E2 स्टेट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही number of transitions होंगे और उतने आपको photons मिलेगा. So this is now this implies this NHT it is proportional to Q nu delta T N2 and this we will again use another Einstein coefficient and that is NHT it is equal to B21. तो जहां एनर्जी नहीं दी जाती वहां पर A कोएफिशिएंट होता है और जहां हम एनर्जी दे रहे हैं एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन में भी हमने B लिखा, stimulated transition भी हमने B लिखा and 2 1 1 2 this gives the direction of transition. So this is B21 Q nu delta T N2 where B21 is Einstein coefficient which gives the total probability of stimulated transition. So this gives the total probability of stimulated transition. Just I am repeating. So what is stimulated transition? This is a transition because of stimulation. ये stimulation कैसे हो रहा है? हम हाई एनर्जी लेवल पर एक फोटॉन ले रहे हैं, ये एटम से स्टिमुलेट होकर के ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है. जब एक एटम आउट स्टिमुलेट होकर ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो दो पैरेलल फोटॉन देगा. इसलिए हमने इस इक्वेशन में लिखा है H + H nu = A + 2H. दो फोटॉन से आपको. अब यहाँ पर this NHT this is the total number of stimulated transition. ये किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? This depends on energy given. जितनी ज्यादा मात्रा में आप एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा. जितनी ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा और जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा. ये तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है. अब तीनों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो दिस इज Q nu delta T into and again we are using another Einstein coefficient that is B21. This is the third Einstein coefficient corresponding to stimulated transition and this B21 it is Einstein coefficient which gives this is the significance which gives the total probability of stimulated transition. जल्दी से इसको लिखो और जैसे कंप्लीट होते जाता है उसको मुझे रिस्पांस दो. हो गया सर करके फिर हम आप आगे बढ़े और साथ ही किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं जल्दी से. I'm giving 2 minutes only.
किसका होते जा रहा है? गिव द रिस्पांस इमीडिएटली। हो गया? जल्दी। तुम रिस्पांस में तो मैं पूछना शुरू करूंगा। एक जने पढ़ो तो क्या क्या लिखे थे? गुड। कोई डाउट नहीं प्रयाग? यहाँ तक क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सिर्फ 2 जने का कंप्लीट हुआ पूरे क्लास में ऐसे ही? नहीं, आराम से मत करो ना यार, जल्दी करो। हर्ष तिवारी हो गया तुम्हारा? मनीष ओके। बचा है? हो गया? निखिल? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, मत करो भाई। अच्छा कॉमन सर्व हो गया, गुड।
पूर्णिमा मिश्रा तुम्हारा? यस सर, हो गया, कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी कमेंट्स करते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये तीसरा जो ट्रांजिशन है, दैट इज द स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, इस पर डिस्कस किया। तो ये एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया है बाय गिविंग टू। मैं तीनों ट्रांजिशन को एक बार फिर से ओवरव्यू कर रहा हूँ, तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि तीनों फेनोमेना लेजर मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो okay, so what we have so far, so this ground state, हमारे पास ground state है। इस ground state में we have N1 atoms, these are N1 atoms, और ये atoms यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इनकी एनर्जी E1 के बराबर है। and we have another state, this is E2, the excited state. When we give energy to the atoms of ground state, then this is that energy given to the atoms of ground state. Then out of N1 atoms, N2 atoms are excited up to higher energy level, and this is a transition because of absorption. That's why the first type of transition इसको हमने नाम दिया था absorption transition. तो पहला transition हमने absorption transition कह दिया। And this NAB, the total number of absorption transition, this depends on three parameters. One is that energy given, हम ग्राउंड स्टेट पे जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा, जितने ज्यादा टाइम तक एनर्जी देंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा, और साथ ही साथ नंबर्स ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट पे जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांजिशन होगा। एंड हियर वी आर यूजिंग one Einstein coefficient, that was V12, and this V12 is the first Einstein coefficient which gives the total probability of absorption transition. Here at higher energy level, the lifetime of these atoms, these are only 10⁻⁸ seconds. अगर हमने 10⁻⁸ सेकंड तक इसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया, then these atoms will come back to ground state by emitting absorbed photon, 1 photon per atom, and this is a spontaneous process. So the second type of transition was spontaneous transition. इसको हमने spontaneous transition कहा था, and this spontaneous transition, the total number of spontaneous transition was represented as SP. यहाँ पर कोई एनर्जी टर्म नहीं है, ये डिपेंड करता है डेल्टा टी, but here this delta t, this is time up to the system is left free, and the total number of atoms N2 with another Einstein coefficient, that is A21. एक Einstein coefficient हमने यहाँ पे भी यूज किया, and this A21 this gives the total probability of spontaneous transition. लेकिन इससे जो निकलने वाले फोटॉन्स हैं, ये फोटॉन्स रैंडम फोटॉन्स हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली किसी भी डायरेक्शन पर इधर-उधर रैंडम जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लीजर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है। अब इसको अगर यूजफुल बनाना है, देन ये एटम्स, इस फोटॉन्स को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। देन वी गिव some external photon to the atoms of excited state, but these photons are given before 10⁻⁸ सेकंड, क्योंकि 10⁻⁸ सेकंड में तो ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। So before 10⁻⁸ सेकंड, when we give this external photon to the atoms of excited state, then these atoms come back to ground state by giving parallel photons, 2 photons per atoms। एक तो पहले से दबा के बैठा हुआ है, दूसरा उसको आपने दे दिया, तो 2 photons per atoms ये ग्राउंड स्टेट पे आने लगा, और ये ट्रिगरिंग प्रोसेस है, इसलिए थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। इसको हम लोग स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन कहते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ, इट इज गिवन बाय दैट एनर्जी गिवन, जितनी ज्यादा एनर्जी आप हायर एनर्जी लेवल पे दोगे उतना ज्यादा ट्रांजिशन होगा, जितनी ज्यादा टाइम तक हायर एनर्जी लेवल पे आप फोटॉन दोगे उतना ज्यादा ट्रांजिशन होगा। एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ एटम्स N2 हायर एनर्जी लेवल पे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्रांजिशन होगा। एक और आइंस्टाइन कोएफिशिएंट हमने यूज किया था, दैट वाज B21। ये 3 प्रकार के
इक्वेशन हमारे पास है, दिस इज फॉर एब्सॉर्प्शन, दिस स्पॉन्टेनियस, दिस इज स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि जो फोटॉन्स ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। सो दिस NAB can be written as equal to NAB can be written as equal to NSP plus NHT। इस जो फोटॉन्स ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा आइदर थ्रू दिस स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। अब स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन के बाद क्या, यहां पर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस चेन रिएक्शन से हमें लेजर मिलता है। कैसे? ये जो एक फोटॉन आपने एक एटम को दिया, सो वी हैव दिस इज वन फोटॉन व्हेन गिविंग टू द एटम्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, दिस इज वन एटम। ये एक एटम जो है वो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन से आपको दो फोटॉन्स देंगे, दिस इज टू फोटॉन एंड these are two photons। ये दो फोटॉन्स पैरेलल है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो अगेन this will stimulate two more atoms। अब एक फोटॉन फिर से दो एटम्स, एक एटम फिर से दो फोटॉन देगा, so this will give two more photons। और यहाँ पर फिर से ये दो से ये चार हो गया, अब फिर से ये फोर फोटॉन्स फोर एटम्स को स्टिमुलेट करेगा and this will give four by two photons per atoms। तो इस तरह से ये फोर से ये H हो गया, again this will stimulate 8 photons will stimulate 8 atoms, so this will give now 16 photons। और इस तरह से ये नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके बीच डिस्टेंस कम होते जाएगा और ये आपस में सुपर इम्पोज। अगेन ये फिर से 16 एटम को स्टिमुलेट करेगा और धीरे धीरे इसके नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं और एक पार्टिकुलर स्टेट आने के बाद ये सारे के सारे फोटॉन्स जो है वो सुपर इंपोज हो जाएंगे इतने पास, क्योंकि सुपर इंपोजिशन के लिए कंडीशन है कि एक दूसरे के बहुत पास आनी चाहिए। तो ये सुपर इंपोज होने के बाद सुपर इंपोज होने की कंडीशन को फुलफिल कर लिए, सब के सब फोटॉन्स एक साथ एसोसिएट हो गए, सुपर इंपोज हो गए, देन दिस कन्वर्ट्स इन फॉर्म ऑफ अ लेजर बीम और ये एक लेजर बीम के फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नाउ द लेजर। Any question? जल्दी से स्पर्धा ज्यादा क्लियर है? सर तो ये सब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे? यस, पैरेलल फोटॉन्स इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए मैंने कहा कि ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, हम इसको एक डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो ये सारे फोटॉन जो एक डायरेक्शन पे जाएगा और सुपर इंपोज होकर के एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हमको लेजर मिलता है। दिस मैकेनिज्म वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, जिसको बाद में एक्सपेरिमेंटली 1960 के आसपास इसको सॉलिड स्टेट लेजर में या लेजर में कन्वर्ट किया गया। तो ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट था कि कैसे एक एटम्स को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं और स्टिमुलेट करके हम लेजर प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा हम नंबर्स के फॉर्म में अगर कोई हम देखने को कितनी इंटेंसिटी कितनी बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकती है, इसको भी अगर कोई देखना चाहे तो अभी हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? हमारे पास मैंने कहा था कि ये N2 is N2, this is about 10⁻³ to 10⁻⁴ एटम्स। कितने एटम्स हैं? N2। स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन से ये N2 एटम्स, एक एटम जो है वो दो फोटॉन दे रहा है, तो दो फोटॉन देगा तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल फोटॉन्स हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू 2 * कितने फोटॉन्स हो गए, मतलब 2 * 10⁸ एंड 2 * 10⁴ इतने फोटॉन्स हो जाएंगे। अब एक फोटॉन्स का अगर कोई एम्पलीट्यूड हम सुपर इक्वेशन में देखते हैं, दिस इज वन फोटॉन, दिस इज अनदर फोटॉन, इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये जुड़ जाते हैं, तो दिस बिकम्स 2a। तो अगर सुपर इंपोज हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो रहे हैं, then the total amplitude will be amplitude that is r, which is equal to 2n2 multiplied by a। कितने amplitude?
अगर इंटेंसिटी का वेव थ्योरी, हम अभी तक वेव थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी में हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को लेकर के चलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स से उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। अगर हम वेव थ्योरी को कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर हम एम्पलीट्यूड को ले रहे हैं, देन दिस इंटेंसिटी I इट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इंटेंसिटी जो रहता है वो a स्क्वायर, ये तुम लोगों ने इंटरफेरेंस में पढ़ा। So this intensity IR, the final intensity, it is proportional to R square. So this is equal to 4n2 square times that A square, and this is equal to 4n2 square times I1. तो जो स्टार्टिंग में जो इंटेंसिटी होगा उसका 4n2 स्क्वायर टाइम्स होगा, और n2 कितना है 10⁻³ to 10⁻⁴, उसमें अनुमान लगा सकते हो 10⁸ टाइम्स उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो एक रफ एस्टिमेशन, अगर उसको इंटेंसिटी का अगर तो देखना है तो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है, दैट हाई इंटेंस आउटपुट इज नोन एज लेजर। इसी हाई इंटेंस आउटपुट को हम लोग लेजर कहते हैं। सर अगर यही लेजर है तो इसमें कलर कैसे आता है फिर? यस, ये कलर डिफरेंट कलर्स मटेरियल डिपेंडेंट होता है ना, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग, हम जब टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ेंगे तो उस टाइप्स ऑफ लेजर में हमको वेवलेंथ के साथ देखना पड़ेगा, और ये आउटपुट जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कलर मिलता है। जनरली हम रेड कलर के आउटपुट के फॉर्म ये मिलते हैं, लेकिन IR और फारा IR रेंज का भी लेजर हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जब हम सिर्फ एक थ्योरी तक पहुंचे हैं, थ्योरी के बाद इसको अब हम नेक्स्ट क्लास से ये देखेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे लेजर में कन्वर्ट किया गया। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, कैसे लेजर मिलेगा, इसकी इंटेंसिटी ऐसा हाई होगी, लेकिन जब उसको एक्सपेरिमेंटली किस प्रकार से लेजर में कन्वर्ट किया गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ओके, सो जस्ट हैव 3 more minutes, किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो जल्दी से करिए और अटेंडेंस देना शुरू कर दीजिए। Now the class is open for simple discussion. कोई भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन तुम कह सकते हो। हाँ, सर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन एक बार और बता दीजिए। ओके, अभी तो कई बार बताऊंगा इसको।